Very good morning, dear student. Welcome to the class point. Dear student, as you have seen in the previous two video, we are discussing the chapter limit and continuity. But we have discussed 1 mark question in the first video, and second video we have discussed 4 mark question. Now again take important question of 4 mark, remaining important question for this. So we may say this is part second we are taking. So first question see. What say if x equal to sin cube t upon root of cos 2t, y equal to cos cube t upon root of cos 2t, find dy by. So dear student, this is very important. That's why we are discussing. This is some more type question is also there. So let's see how we solve this. So this is given in the parametric form, x equal to t, or we can say function in t, y equal to function in t, means x and y directly are not dependent, x depend on t and y also depend t. So both are depend on the third variable. Such type of function are known as parametric form. So for that we have to differentiate with respect to t. Both function we have to differentiate with respect to t. So this will be dx by dt. Now on the right hand side we use quotient rule, sin cube t upon root of cos 2t. So we use quotient rule. First write denominator cos 2t into derivative of the numerator, that is sin cube t, minus numerator into derivative of denominator. So we are using the quotient formula upon root of cos 2t. Clear? Now see here we, so dx by dt is equal to root of cos 2t. Now as you know that this can be written as x power n. x power n का डेरिवेटिव यानी sin पावर 3 का करोगे तो 3 का 3 into sin पावर t हो जाएगा, ठीक है ना, sin स्क्वायर t, यानी sin t को हमने x मान लिया तो x पावर 3 का क्या होता है 3x स्क्वायर. अब जो आपने x रख दिया उसका वापस करो तो sin का करोगे तो cos t with respect to t. Similarly on second term sin cube into, now derivative of this, so this is root, इसको पूरे को x मान लीजिए, root x. तो root x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon 2 root x. तो 1 upon 2 root x means here cos 2t into, अब इस cos 2t का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस होगा sin 2t और वापस 2t का करोगे तो 2 आएगा और आपके अपॉन में ये आ गया रूट ऑफ cos 2t. ये पूरे के होल अपॉन. नाउ दिस यू कैन सिंप्लीफाई. अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करना है. अच्छा इसका स्क्वायर करोगे, सॉरी स्क्वायर ऑफ दिस, इसका स्क्वायर करोगे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास फार्मूला यही है अपॉन बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर स्क्वायर. अब इसमें देखिए यहाँ देख ये जैसे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये रूट कॉस 2t एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. रूट कॉस 2t इंटू रूट कॉस 2t और एलसीएम भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा cos 2t, ठीक है ना. रूट x इंटू रूट x करते हुए x आता है, उसी का रूट cos 2t इंटू रूट cos 2t, दैट इज cos 2t. क्लियर? नाउ 3 sin स्क्वायर इंटू cos t माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin 2t और sin क्यूब 2t रह जाएगा.
अब ये जो नीचे वाला रूट कॉस 2t है और ये cos 2t, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा cos 2t पावर 3/2। क्लियर? इसी तरह से हम सेकंड वाले का करेंगे। सेकंड वाले में क्या करोगे आप, dy/dt, तो इसमें भी वैसे रूल लागू होगा, रूट ऑफ cos 2t इंटू dy/dt ऑफ cos पावर qt माइनस cos 2t dy/dt ऑफ रूट cos 2t, ये 2t है, अपॉन होल अपॉन रूट ऑफ cos 2t इट्स स्क्वायर। तो इसमें भी वही फॉर्मूला सिंप्लीफाई करोगे, तो ये तो रूट cos 2t रहेगा और इसका डेरिवेटिव करोगे 3 cos स्क्वायर t, फिर cos का करोगे माइनस sin t, फिर माइनस cos qt और इसका अभी हमने किया था 2 रूट cos 2t और cos का करोगे वापस माइनस sin 2t इंटू 2 और ये रूट और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2 आ गया, cos 2। नाउ वी सिंप्लीफाई दिस, तो अब इसमें देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, ये रूट cos 2t मल्टीप्लाई करेंगे रूट cos 2t से, तो रूट रूट हट जाएगा, तो cos 2t माइनस का बाहर ले लीजिए माइनस और 3 को भी बाहर ले लीजिए, तो cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू sin t, नाउ दिस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या रह गया cos qt इंटू sin qt। अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी जैसे पहले हुई थी, cos 2t की पावर 1 है और cos 2t की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2 होल पावर 3/2। तो ये आपका dy/dt वैल्यू आ गई है -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos qt इंटू sin 2t, एंड dx/dt की वैल्यू आ गई हमारी cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t अपॉन sin 2t। अब हमको निकालना क्या, देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म जब भी दे रखी होती है तो आपको ये अगर निकालना है dy/dt, तो सेपरेटली आपको dx/dt निकालो, dy/dt और फिर दोनों का डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, दिस इज सेकंड, so we divide second by first, that is dy/dx can be written as dy/dt upon dx/dt। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, dy/dt की वैल्यू ये रहेगी -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t, पर अब आपको सिंप्लीफाई करना है, दोनों में कॉमन लेके कैंसिल करके फॉर्मूला ये पूरा उसका वैल्यू आ जाएगा अपॉन। अब इसमें देखिए ये दोनों एलसीएम आपस में कैंसिल हो जाएगा या डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2t का 3/2 डिवाइड करोगे cos 2t, तो ये नीचे सिर्फ ये रहेगा, तो 3 cos 2t sin स्क्वायर t cos t प्लस sin 2t इंटू sin 2t। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप कॉमन ले सकते हो sin t cos t, ठीक है ना, इसमें भी कॉमन आ जाएगा sin t cos t, इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में आप sin t cos t कॉमन लोगे, पीछे रह जाएगा -3 cos 2t, अब sin t चला गया, एक cos t चला गया, एक cos रह गया cos t प्लस यहाँ एक cos चला गया तो cos स्क्वायर t। अब यहाँ फॉर्मूला आपको ओपन करना पड़ेगा, ये क्योंकि sin t नहीं है sin 2t है, राइट, तो sin 2t को ओपन करोगे क्या होगा 2 sin t cos t, उसमें से ये बाहर आ जाएगा,
ठीक है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ साइन, इसका फॉर्मूला आप लिखोगे इसका साइन 2t की जगह 2 sin t cos t। अब इसमें से ये साइन t बाहर चला गया, ये कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ है नहीं साइन t, और पीछे क्या रह गया, एक cos रह गया, तो cos की पावर, अच्छा ये cos भी बाहर चला गया, 3 है ही ऑलरेडी, तो ये 3t और ये 2 रह जाएगा बस ये रहेगा। ये आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। sin 2t की जगह 2 sin t cos t, तो 2 अंदर रह जाएगा, sin t cos t बाहर आ जाएगा, तो sin क्यूब t। अब ये न्यूमरेटर में कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लीजिए, तो डिनोमिनेटर में हम लोग कॉमन लेंगे sin t cos t, तो sin t cos t यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये 3 cos 2t, यहाँ sin t एक रह जाएगा, cos 2t इंटू साइन t, ये cos t बाहर आ गया, एक sin t बाहर आ गया, राइट, प्लस अब इसमें से एक sin t बाहर आएगा, एक cos t बाहर आएगा, तो वापस आपका sin आएगा या cos रहेगा, तो ये sin क्यूब t cos t इंटू 2, तो ये आपके डिनोमिनेटर आ जाएगा, cos बाहर आ गया, राइट, तो यह ओनली वी गेट 2 sin क्यूब t, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको sin 2t का ये फॉर्मूला रखना है, 2 sin t cos t, cos बाहर आ गया, sin आ गया, ये 2 रह गया, और ये जो है यहाँ पर ये sin क्यूब। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sin t cos t। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, dy बाय dx इक्वल टू -3 this is cos t। now we use here formula, अब इसको वैसे भी कॉमन लेने के लिए यहाँ cos 2t का फार्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ cos क्यूब है, और अगर cos वाला फार्मूला आएगा यहाँ पे क्यूब आ सकता है, cos t ऑलरेडी है, स्क्वायर होता है cos 2t का, तो cos 2t क्या होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये cos 2t का हमने फार्मूला लिखा है, राइट, -3 cos 2t का, और cos t वैसे लिख दिया, प्लस 2 cos qt अपॉन, इसी तरह नीचे वाले में साइन आ गया, तो साइन के टर्म में फॉर्मूला आएगा 3 sin t, ये जो यहाँ पर है cos 2t, this cos 2t we can take formula in term of sin, why we take in term of sin, because all other term are sin, so cos 2t होता है 1 minus 2 sin स्क्वायर t, तो यहाँ पर भी हमने ये फॉर्मूला लगा प्लस 2 sin qt। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए -3 cos t और ये 2 करोगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, -6 cos क्यूब t, और ये 2 cos क्यूब t है, ये 2 cos क्यूब t और -6, तो माइनस का 4 हो गया, -4 cos क्यूब t रहेगा। अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 cos t। इसी तरह से न्यूमरेटर में देखिए ये 3 sin t रह जाएगा, 3 sin t, और यहाँ -2 sin t मल्टीप्लाई विथ 3 दैट इज -6 प्लस 2, तो ये भी माइनस का 4 हो जाएगा, 4 sin क्यूब t। अब न्यूमरेटर में से और माइनस कॉमन लीजिए, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा cos t का, अगर इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 4 cos क्यूब t -3 cos t अपॉन 3 sin t -4 sin t। So you can see here numerator and denominator both represent the standard formula sin 3t and cos 3t। ये sin 3t का फार्मूला था, 3 sin x -4 sin x क्यूब sin 3, और ये cos का है, तो माइनस cos 3x अपॉन sin 3x, तो क्या आ जाएगा
cos 3t अपॉन sin 3t। तो cos अपॉन sin tan cot आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा माइनस cos 3t माइनस cot 3t। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वी कैन सॉल्व। इंपॉर्टेंट इज देयर कैलकुलेशन, आपका इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन आप ढंग से नहीं करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन पे बेटा थोड़ा जोर देना और डेरिवेटिव को अच्छी तरह से करना, फॉर्मूले यूज करना, देन यू कैन इजीली। So question second part say if y equal to tan inverse 5ax upon a square minus 6x square, then show that dy by dx equal to 3a upon a square plus 9x square plus 2a upon a square plus 4। तो ये और टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप डायरेक्ट करने जाओगे बिना किए हुए या समझे हुए तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, क्योंकि डायरेक्ट आप करोगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव करके करोगे तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, आपको सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इसका करोगे तो एक ही टर्म आएगा डायरेक्ट टर्म, इसमें दो टर्म है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये tan के रूप में दो फॉर्मूला, वो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे tan इनवर्स है तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको दो tan में कन्वर्ट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर को डिवाइड कर लेते हैं a स्क्वायर से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो इन सॉल्यूशन इज हियर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5ax अपॉन a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। नाउ वी डिवाइड बाय। ये आपको क्यू पॉइंट हमेशा मैथ्स में याद रखने पड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या और टाइप के क्वेश्चन है उसमें अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं आएगा तो आपके आंसर भी नहीं आएगा। सो वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a स्क्वायर। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5ax डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो 5x अपॉन a, यहाँ a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे 1। अब 6x स्क्वायर को करोगे तो now we can write this as y equal to tan inverse now 5x upon a। here see we need 5 but we need 3a and 2a। तो 3a और 2a का सम कितना 5 होता है, तो इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये साथ साथ में आपको देखना भी है क्या लाना है। तो 5x को मैं लिख सकता हूँ 3x अपॉन a प्लस 2x अपॉन a, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, डिनोमिनेटर में b इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3x अपॉन a इंटू 2x अपॉन a, तो ये डिनोमिनेटर आएगा। ये जो सेकेंड टर्म है 6x स्क्वायर a स्क्वायर 3 इंटू 2x 6x स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ सी वी कैन से दिस इज a formula of tan inverse x plus y upon 1 minus x into y। ठीक है, so we have to use this, that is equal to tan inverse x, x means here 3 upon x plus tan inverse y, y means 2x upon, right। So here we are using this formula, this tan inverse x plus y upon 1 minus xy is equal to, यानी ये उल्टा फॉर्मूला है। हम लोग जो हमेशा इस तरह से यूज करते थे, इधर से इधर जाते थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू ये होता है, ये दे रखा तो ये होगा, यानी इसको वेरिएबल को हम सेपरेट कर रहे हैं। सो व्हाट वी गेट tan इनवर्स dx अपॉन a प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन a, करेक्ट। सो डियर स्टूडेंट, नाउ वी कैन इजीली डिफरेंशिएट बिकॉज़ वी गेट टू टर्म्स। नाउ डिफरेंशिएट, सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x। अब x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का ये क्योंकि हमको निकालना क्या है dy by dt, तो सिर्फ y को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, y को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है।
सो dy बाय dx, अब यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेरिवेटिव tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है 3x अपॉन ए, तो इसको वापस आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो आपने x सपोज किया, यानी 3x अपॉन ए प्लस, अब इसका भी डेरिवेटिव करेंगे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह यहाँ पर है 2x बाई u, अब जो आपने सपोज किया x दैट अगेन डिफरेंशिएट, तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए, राइट। सो नाउ वी सी हियर, नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट द आंसर, तो इसको देखिए ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका में एलसीएम लूंगा तो a स्क्वायर आएगा और a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम a स्क्वायर आएगा वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स, 3x का डेरिवेटिव करोगे तो 3 रहेगा नीचे 1 यानी 3 बाय 3, तो ये एक आप ये कैंसिल कर दोगे तो आपका न्यूमरेटर आंसर पहला पार्ट आ गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9, ये एक a से a कैंसिल हो गया 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। इसी तरह सेकंड वाले का एलसीएम लीजिए a स्क्वायर ऊपर आएगा अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x और इसका करोगे 2 बाई a, तो a और यहाँ कैंसिल हो जाएगा मल्टीपल में सीधे, तो 2a, सो फाइनली व्हाट वी गेट dy by dx is equal to 3a upon a square plus 9x square plus 2a upon a square plus, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि जो क्लिक वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको जल्दी आते नहीं है, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी, देन ओनली यू गेट दिस वन। नाउ वन मोर सी, ये सब किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, पिछले 10 साल के बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये कर लोगे तो इनमें में से आपका पेपर सेट होगा। So third question, this is also NCERT question and important question, that's why I am considering here. Let x equal to root of, आगे लिख दीजिए, if x equal to root of a power sin inverse t and y equal to root of a power cos inverse t, then say show that dy by dx equal to y by x, means we have to show that the derivative of this function is y by, अब यहाँ पर आपका ये फंक्शन है वो किसमें दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो पैरामेट्रिक का हमने अभी किया था, तो आप उस मेथड से करोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, अगर आपका सिंप्लीफिकेशन अच्छा है तो आंसर भी आ जाएगा। और दूसरा इसका मेथड है, इसको या तो सिंगल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो आप cos थीटा और sin थीटा से कन्वर्ट करके, और सबसे बेस्ट है इजी मेथड है, जल्दी बहुत हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बिना प्रैक्टिस के क्लिक नहीं होगा, ठीक है ना, आप पार्टिकुलर क्वेश्चंस को करोगे तो आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट होता जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट का लेफ्ट के साथ, तो x इंटू वाई, अब राइट का राइट के साथ a साइन इनवर्स t a पावर साइन इनवर्स t इंटू a पावर cos इनवर्स t, तो एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए दोनों का रूट का है, राइट, रूट 2 इंटू रूट 3 मान लो है, तो दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो गए, साइन इनवर्स t इंटू a पावर, अब आप देखिए दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीपल है,
So power will be added. Sin inverse t plus cos inverse t. अब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि sin inverse x upon cos inverse, so sin inverse x plus cos inverse x is always equal to pi by 2. Sin inverse theta plus cos inverse theta is always equal to pi by 2. तो यहाँ पर भी थीटा मतलब t हमारा सेम है, तो sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t को हम पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो राइट साइड पे आ गई रूट ऑफ a पावर पाई बाय 2। अब राइट साइड में आप देखोगे ये सब कांस्टेंट है, इसमें आपको घबराना नहीं है। देयर इज नो t, यहाँ हमारा t हट गया, हमने एलिमिनेट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसका डेरिवेटिव 0 है तो बस इसी का डेरिवेटिव करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। सो वी आर गेटिंग xy इक्वल टू रूट ऑफ, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज़ वी नीड dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा। तो फंक्शन इज प्रोडक्ट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ y तो dy by dx प्लस y इनटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x dy by dx, ये 1 हो जाएगा dx upon dx, अब y को तो ले जाइए, तो x dy by dx, ये माइनस नहीं है, यहाँ माइनस आएगा, माइनस भी रखा है, मैं क्या करती सी माइनस हो। सो y ट्रांसफर टू दिस साइड, सो व्हाट वी गेट x डिवाइड बाय dx इक्वल टू -y। अब इस x को इधर लाइए, सो फाइनली व्हाट वी गेट dy बाय dx इक्वल टू -y बाय x। सो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। लेकिन इसमें आपको पॉइंट ये याद आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट मेथड से करना है। इसका dx बाय dt निकालना, इसका dy बाय dt निकालना, जैसे जनरल फॉर्मूले से फिर दोनों को डिवाइड कर लेना और आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आंसर भी आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, इफ x पावर y प्लस y पावर x, ये भी एनसीआर दी गई है। इफ x पावर y प्लस y पावर x log a फाइंड dy बाय dx, तो आपको dy बाय dx निकालना। तो ये हमने पहले भी कर रखा है, u और v सपोज करोगे, जब भी आपको फंक्शन, ये क्या है, फंक्शन पावर फंक्शन दे रखा है, तो जब भी इस फॉर्म में होगा आपको क्या करना है, डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। अगर प्लस बीच में और माइनस हो, जहां फर्स्ट में प्लस और माइनस बीच में हो तो आपको डायरेक्ट लॉग नहीं लेना है। यू हैव टू फर्स्ट सपोज सेपरेट फंक्शन एंड देन टेक लॉग, correct? So this you can say solution, let x power y equal to u and y power x equal to v। अब इसका आप लोग taking log on both sides, तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो log u होगा, मैं पहले लिख देता हूँ log u को, और राइट साइड में ये आ जाएगा y log x पावर जो भी होती है वो इनटू में आ जाती है जब log लेते हैं। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर हमारा given क्या हो गया है, पहले given को लिख लीजिए। given क्या है, x पावर y पावर x इक्वल टू log a। अब इसको मैंने ले लिया है u, तो u प्लस v इक्वल टू log a।
अब इसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, du by dx, dv by dx and derivative of log will be 0 because it is a log a, that is constant। तो अब देखिए इसका हमको क्या निकालना है, du अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dx, तो वो दोनों यहाँ से आ जाएंगे। तो इसको x के रेस्पेक्ट में करोगे तो वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, तो log x का 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन u। अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में d, तो चेंज करोगे तो du बाय dx। अब यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला y इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 बाय x प्लस log x और डेरिवेटिव ऑफ y। तो यहाँ से आपको du by dx इक्वल टू y बाय x प्लस log x dy बाय dy। अब u इधर ले जाएंगे तो du बाय dx u इंटू y प्लस x, एलसीएम आप ले सकते हो या वैसे रहने दो बोले dv बाय, इसको एलसीएम मत लीजिए, वैसे लिख लीजिए log x dy बाय। तो ये आपका आ गया। अब u वापस आप सपोज कर रहे हैं वो कर लीजिए, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, du बाय dx, u मींस x पावर y। ये आपका आ गया। अब इसी तरह से इसको भी हम डेरिवेटिव करेंगे, log लेंगे तो log v इक्वल टू x log y, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाय dx होगा और यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log y, दैट इज 1 अपॉन y dy बाय dx प्लस log y एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो यहाँ से आप dy बाय dx निकाल लीजिए। सो dv अपॉन dx इक्वल टू v इंटू, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो x अपॉन y dy बाय dx प्लस log y, v की वैल्यू पुट कर दीजिए y बाय। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 4 मार्क्स का है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, log y। तो ये दोनों की वैल्यू आ गई है du बाय dx एंड dv बाय। अब इन दोनों को यहाँ ऐड करना, du बाय dx की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगी, x पावर y बाय x प्लस log x इंटू dy बाय dx प्लस dv बाय dx की वैल्यू रखेंगे y पावर x बाय y dy बाय dx and log। Now dear student, you have to take dy by dx one side and other will be on other side। तो यहाँ हम क्या करते हैं, dy by dx का कोएफिशिएंट ले लेते हैं, क्या क्या है मल्टीपल में, यहाँ है ये x पावर y log x और ये भी प्लस में ही है, तो ये हो जाएगा y पावर, अब इसको चाहे तो y पावर एक माइनस में कर सकते हैं, ठीक है, x है तो y पावर x माइनस 1 इंटू x, तो ये dy बाय dx और बाकी को राइट साइड में ले जाओगे तो साइन माइनस में आ जाएगा। बाकी का मतलब जिसमें ये नहीं है dy बाय ये वाला सब प्लस आएगा, y पावर x क्या वो ऊपर ये वाला, अब log y के पास आएगा, हाँ अच्छा प्लस, हाँ दिस इज प्लस। नाउ वी टेक हियर अदर टर्म दैट dy बाय dx के टर्म जो भी है, जैसे ये पहला है और ये है, इन दोनों को राइट साइड में लेके दोनों माइनस हो गए और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x पावर y बाय x प्लस log y एंड y पावर x। तो dy बाय dx निकालना है तो ये आपका आंसर आ गया माइनस x पावर y बाय x प्लस log y पावर x होल अपॉन ये पूरा नीचे आ जाएगा, इधर जाएगा x पावर y। So in this way we can find the value. So this is a very important
Dear student, this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day.